Good morning, everyone. Welcome to the another session of Information and Technology. Today we will continue in chapter 3, that is ICT. And today in this class or in this session, we will discuss about software and its types. In the last few class, we have discussed what are the different hardware and their different uses in a computer system or in a complete structure or setup of IT. When we talk about software, the very first thing that comes to our mind, it is a collection of program which is designed to fulfill our needs. Like if I have bought a computer, that is a hardware setup. There is a CPU, there is a keyboard, there is a monitor, there is a mouse, there is a UPS. But the entire setup of hardware is completely worthless if there is no software. Software makes it possible to use a hardware. Software makes it possible to run some application in a hardware. And software allows us to use a hardware. So software can be defined as a collection of program. That program can be of any language, whichever language we have learned or whichever language has been introduced in last many years. What I'm trying to say, कि you have a device, you have some tangible component. That device, that tangible component will work only if there is an existence of a software. And that software is designed using some languages, using some instruction, using some prototype. So that software can be classified into three different types. फिर से मैं बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को डिफाइन जब करना हो तो हम सिंपल लिख सकते हैं, a software is a collection of program which is designed to fulfill the needs of a human being or which is designed to fulfill our needs. ये एक सिंगल कॉमन डेफिनेशन आप हमेशा याद रख सकते हैं. इसके टाइप्स के डिफाइन करने के टाइम पे भी हम इस फर्स्ट वाले पार्ट को यूज कर सकते हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना हो तो वी कैन से इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइंड टू फुलफिल any specific need. System software, it is a collection of program which is designed to run a computer system or run a device. System utility software, it is a collection of program which is designed to fulfill any additional needs. We will talk about these one by one. Okay, so there are three basic classification of software and they have been discussed or described as this kind of flow chart. अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें सॉफ्टवेयर को तीन बेसिक कैटेगरी में बांटा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है बट ये हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करता है. कैसे, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं. सॉफ्टवेयर थ्री टाइप्स, एप्लीकेशन, सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटी और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. इफ आई प्राइमरीली टॉक अबाउट एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को अगर दो कैटेगरी में प्राइमरीली फोकस करें कि इसका दो टाइप है, एक एप्लीकेशन हो गया, एक सिस्टम हो गया, तो एप्लीकेशन के पहले ज़्यादा जरूरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपका ओके नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सोच ही नहीं सकते. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है टू टाइप्स, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या काम है? लैंग्वेज प्रोसेसर का काम है लैंग्वेज को कन्वर्ट करना. लाइक वी हैव लर्न सपोज C++, वी हैव लर्न सपोज पाइथन, वी हैव लर्न विजुअल बेसिक, वी हैव लर्न क्यू बेसिक. तो आपने जो समझा है आपके समझने लायक लायक सिंटैक्स में समझा है. आपको अगर आप क्यू बेसिक आपने सीखा है तो आपको पता है कि क्यू बेसिक में किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं. अगर आपने C++ यूज किया है क्लास 8 में तो आपने देखा था कि सी आउट और सी इन का यूज करते हैं. सो दैट सिंटैक्स इज डिजाइंड फॉर यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि फॉर दिस पर्पस वी राइट दिस कमांड, फॉर दिस पर्पस वी राइट दिस कमांड. But the computer, the processor needs to understand that syntax in his understandable form. उसको समझ में आना चाहिए कि नहीं, मुझे कहा जा रहा है कि आप आउटपुट डिस्प्ले करो प्रिंट के थ्रू या सी आउट के थ्रू. सो टू मेक हिम अंडरस्टैंड वी नीड टू कन्वर्ट द लैंग्वेज. हम जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे, वो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होता है. मशीन जिस
लैंग्वेज को समझ पाता है उसके अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जिसको वो समझ पाए, दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ले लीजिए, लो लेवल लैंग्वेज जैसे मशीन लैंग्वेज हो गया या बाइनरी लैंग्वेज हो गया 0 and 1। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम ही है टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, और इस कन्वर्जन को करने के लिए उसके पास तीन लोगों की टीम है, तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है। कंपाइलर भी ये काम करता है, इंटरप्रेटर भी ये काम करता है और असेंबलर भी ये काम करता है, लेकिन तीनों अलग अलग तरह के लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों मोर और लेस सेम है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एट वंस। मतलब इसको 5 लाइन का कोड दे दीजिए, एक बार में कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेटर कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। मतलब ये थोड़ा सा स्लो है, ये लाइन बाय लाइन काम करता है, एक लाइन काम खत्म करेगा, फिर दूसरे लाइन पे जाएगा, उसको खत्म करेगा, फिर तीसरे लाइन पे जाएगा। असेंबलर एक डिफरेंट एंटिटी का लैंग्वेज प्रोसेसर, एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक का लैंग्वेज प्रोसेसर, एक डिफरेंट नेचर का लैंग्वेज प्रोसेसर है, विच कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज एक डेडिकेटेड डिजाइन, एक स्पेसिफिक डिजाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है। अगर यूज होती है तो वो चिप लेवल डिजाइन को या बहुत हाई लेवल इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन में यूज किए जाते हैं। अदरवाइज इसका पहले काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी था। आज के टाइम पे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज ए लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर इज बेसिकली ए ट्रांसलेटर which convert the high level language into low level language. It has two basic type, compiler and interpreter. Compiler convert high level language into low level language at once. Interpreter convert high level language into low level language line by line, and assembler convert assembly language into low level language. अब आ जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यू नो वेल व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एन इंटरफेस बिटवीन whom, बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। एक सिस्टम खरीद कर ला रहे हैं, एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसमें जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हम उस सिस्टम को ऑन नहीं कर सकते। हम ये बिल्कुल नहीं देख सकते उस सिस्टम में कितना हार्ड डिस्क है, उस सिस्टम के माई कंप्यूटर पे नहीं जा सकते, उस सिस्टम पे कुछ फाइल सेव नहीं कर सकते, उस सिस्टम पे हम एक काम भी नहीं कर सकते अगर एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या एक मोबाइल किसी भी तरह के स्मार्टफोन में जब तक एक पर्टिकुलर फाइल ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग system. So operating system is a system software. And what exactly the responsibility of a system software? We have discussed. There are everything is managed by operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है फाइल मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है मेमोरी मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है प्रोसेस मैनेज करना, इसका काम है सिक्योरिटी मैनेज करना, इसका काम है यूजर इंटरफेस मैनेज करना, सिक्योरिटी के साथ साथ इसका फाइल कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना। So operating system is basically the initial infrastructure और initial platform for any device. आप एक नया स्मार्टफोन अगर खरीदते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, तो एंड्रॉयड और iOS जब तक ना हो आप उस सिस्टम को, उस स्मार्टफोन को ऑन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिंग एज ए इंटरफेस। दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज समथिंग दैट इज अलाउिंग अस टू यूज द कंप्यूटर और एनी डिवाइस। That operating system is allowing us to start the device. Okay, so there are number of operating system. There are operating system like Windows, Linux, Macintosh for computer or laptops. There are operating system for mobile device as well, like Android, iOS, Microsoft का Windows also was available. So what I'm trying to say is software two types, application, system. System we have discussed. In system we have two types, language processor and operating system. Language processor का three more type, compiler, interpreter and assembler. Operating system we have discussed. Now come to the application software. What is application software? Application software is something that is required after the presence of system software. आप एक नया डेस्कटॉप लेकर आ गए, एक नया लैपटॉप लेकर आ गए, आपको उसमें विंडोज इंस्टॉल करके दे दिया गया, प्री इंस्टॉल एक जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया गया। नाउ यू हैव बॉट लैपटॉप नॉट ओनली फॉर वर्किंग ऑन पेंटिंग्स, नॉट ओनली फॉर वॉचिंग मूवीज। अगर आपको मूवीज भी देखना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर मेनी वीडियोज विच आर नॉट गेटिंग प्लेड इन विंडोज मीडिया प्लेयर।
आपको या तो केएम प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको इंटरनेट यूज करना है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से काम नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपको एज में भी इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग पा रहा है, तो आपको गूगल क्रोम इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? वीएलसी मीडिया प्लेयर हो, गूगल क्रोम हो, केएम प्लेयर हो, व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Why they are called application software? These are certain software, these are certain package, these are certain programs which is designed to fulfill any specific needs. I need to listen some songs, I will install an mp3 player application software. I need to do something else, suppose I need to work on a video editor software install करेंगे. I need to work on programming like in C++, turbo C का software install करेंगे. So all these software which we install for to fulfill the specific needs, वो कुछ भी needs हो सकता है, तो उसी के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ये हमारी ज़रूरतों के हिसाब से इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं which can be accessed or which can be used by anyone, whether that person is a student, whether that person is a housewife or husband, or that person is a lawyer or a medical professionals or an engineers or any working in a restaurant as a data entry operator. What I am trying to say, there are certain software which is available for everyone because their purpose, their utility is such that these software cannot be ignored. So these kind of software are called package software or general purpose software or application package software, like MS Office, like OpenOffice, like Photoshop. What I am trying to say, you will find that MS Office is available in all of the computer, whoever it is. Why? Because we need to work on MS Word, we need to work in MS Excel, we need to work on MS PowerPoint. So these are called package software, like Tally. So these are application package. Now there are certain software which is dedicatedly designed for certain people, for certain organization, for certain office, for certain institution. Like if I am just willing to open a medical shop, I need to give the bill in a computerized invoice form. Computerized bill generate करना है तो मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहां पर मैं सारे कस्टमर का डिटेल्स एंटर कर सकूं, जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका मेरे पास स्टॉक मेंटेन हो, उनका प्राइस करेक्ट आ जाए, उनका जीएसटी वगैरह जो भी लगना है या टैक्स लगना है या डिस्काउंट देना है, सारा कुछ एक प्रॉपरली एक फॉर्मेट में डिजाइन हो और इमीडिएटली मैं प्रिंट करके उसको दूँ कस्टमर को। मुझे एक शॉपिंग मॉल ओपन करना है किसी एरिया में, उस शॉपिंग मॉल पे मुझे हर तरह के प्रोडक्ट को सेल करना है, कस्टमर आ रहे हैं तो उनको हर तरह के प्रोडक्ट का इन्वॉइस देना है, तो मुझे स्टॉक मेंटेन करने के लिए, कस्टमर का बिल जनरेट करने के लिए, सारे एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिकॉर्ड या सैलरी मेंटेन करने के लिए मुझे एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सो दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: application software and system software. System software has to be installed in the very beginning, otherwise we will not able to use any hardware device. After installing of system software, we go for application software. And in application software, we have two more type, which is one of us general use for anyone, everyone. They are general purpose software or application package software like MS Office, OpenOffice, Paint. Similarly, there are certain software which is dedicatedly designed for any office, any company, any institution. They are called specific purpose software or customized software. Then we have system utility software. There are certain software which we find are very helpful. Like suppose you are sending multiple files through a mail. आप उन फाइल्स को अलग अलग अटैच करके भी भेज सकते हैं, बट इफ यू वांट टू सेंड अ कंप्लीट फोल्डर, आपको एक फोल्डर भेजना है जिसमें आपको 10 वर्ड के फाइल है, तो आप फोल्डर को अटैच नहीं कर पाएंगे ईमेल पे। अब उस फोल्डर को आपको एक कंप्रेस फाइल या जिप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर विच इज WinRAR और WinZip. These are used to convert a folder into a file form using some utility software.
तो ये जो WinRAR हो गया या WinZip हो गया, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो फाइल को कंप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सेफ्टी पर्पज से, सिक्योरिटी पर्पज से ज़्यादा सही होता है। देयर आर सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस। We have taken a computer, we know there is a chances of getting virus into your computer through internet, through pen drive. For that, what we need? We need an antivirus. So antivirus is the utility software. सपोज आपके सिस्टम पे बहुत अननेसेसरी फाइल है, जंक फाइल है, आपको लग रहा है सिस्टम स्लो काम कर रहा है, कैश फाइल भर गया है, बहुत सारा रेगुलर सिस्टम यूज़ करते हैं तो टेम्प्रेरी फाइल क्रिएट्स हो गए हैं, गेम वगैरह खेलते हैं तो उसके कारण बहुत सारा जंक फाइल क्रिएट हो गया है। तो उन सब क्लीन करने का, कौन सा फाइल अननेसेसरी है उसको हटाने के लिए कि आपका सिस्टम थोड़ा सा ओके हो, हेल्दी स्टेटस में आए, इसके लिए हमें एक अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड डिस्क मैनेजर। मान लीजिए आपको फोटोज भेजने हैं, 10 फोटोज, आप उनको उसके ओरिजिनल साइज पर अटैच कर रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो 50 MB हो रहा है, जबकि ईमेल पे आप 25 MB का अटैचमेंट भेज सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप फोटोज को रिसाइज करेंगे या 2 ईमेल में भेजेंगे। तो रिसाइज करने हैं तो आपको रिसाइजर सॉफ्टवेयर मिलेंगे, इमेज रिसाइजर। सो दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट कि सॉफ्टवेयर है क्या, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है विच इज डिजाइन टू फुलफिल आवर नीड्स, and that software has two types: application software and system software. System software is you install in the very beginning, then we can talk about application software. Their subtype we have discussed, utility software we have discussed. Okay, then next we have application software. But before going that, wait, let me just check. Okay, these application software का different types and system software का different type we will talk in next class. Okay, let's just finish up the session today. Today's session now only. जो भी आपका होमवर्क वगैरह है आपको गूगल क्लासरूम में भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज पुट अप योर डाउट्स इन द ग्रुप। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।